Hello, hello, hello. Welcome Akash Mehta and Friends podcast. New season with Jaspreet Singh. हेलो जसप्रीत सिंह. क्या बोलता है? क्या बोलता हूँ? I'm so glad you're here. I asked you to call me up I know, for the podcast. but and I'm glad because so many guests that I don't think कि ये लोग को आने का रहेगा, and then I don't ask only. हाँ. And then मुझे देना चाहिए मेरे ख्याल से भी. You know, last time अपन जब दिल्ली में hang out किए ना, that was like revolutionary hanging out time for me. काफी ज्यादा So, हैंग आउट अच्छा था. हाँ, and I would have otherwise also asked after that anyway. But then तूने पूछ लिया, तो हाँ मेरे को था कि बॉम्बे आ ही रहा हूँ और मैं फेमस भी हुई तो बुला ही लेगा तू मेरे को. हाँ, राइट. तो आई थॉट कि probably you want to, but हो सकता है ना probably you're planning certain episodes के बाद में इसके साथ कर लूंगा whenever that Yeah, happens. it I'm was- going Delhi. I'm saying कि मैं ही आ रहा हूँ तो Yeah. let's do it because मेरे को पता था तू बुलाएगा तो सही मेरे को. वही I यार. knew that. Actually, I wanted to do it in person because I was so tired of doing these. Zoom नकली है, कोई फायदा नहीं Zoom का. You can't even be real. You can't, you know, वो नहीं आती, एक रिदम होती है ना कॉन्वर्सेशन की, वो नहीं आती. Exactly, back and forth नहीं हो पाता है. ये जैसे मैं तेरी अभी बीच में बात काट रहा हूँ. हाँ. वो मैं तब काटूं जब तेरा अगला सेंटेंस चल रहा होता है बिकॉज लैग है इंटरनेट का. Exactly. वो इंटरप्ट करने में मजा नहीं आता ना, ये मजा आता है इंटरप्ट करने में. You've been doing comedy for now 7 years. Oh fuck. Happy anniversary. To you? Yes, 6 years. 6 years today. Shit, I forgot. On the 15th of March. 15th March. Oh, happy anniversary to me. I forgot, dude. मेरे को मतलब I released the video. It was planned around this time only. I wanted to put it on 15th March. फिर मैंने देखा Monday में नहीं, Friday डालो. हाँ. तो but otherwise yeah, it was for that thing only कि मेरे 6 साल होने वाले हैं. तो today 6 years. Thank you. Hey, congratulations, Thank dude. you. 6 years, not bad at all. It's not like a fake expression. मेरे को अभी इसने याद चला, मेरे को याद आया, नहीं तो मेरे को घर जाके याद आता. यहाँ जब मैं फोन देखता तो 15 मार्च लिखा होता तो याद आता मेरे को. मेरे को रात में याद था कि कल ऐसा है. हाँ. But it's been quick. 6 years is fast. To हाँ, get to a point where you're selling internationally and you're doing everything, you're doing special. हाँ ये बोल सकते हैं क्या? तू बोल हाँ, तुझे पता? I'll be doing a special this year. Okay. हाँ. I'll beep out. You beep or whatever. हाँ, but it's so in the beginning of this year I posted set of goals I wanted to do this year. तो उसमें एक था 45 minutes of content on internet. हाँ. तो मेरे को था कि या तो स्पेशल हो जाएगा या फिर I'll put it out 45 minutes ऐसे ही. Yeah. But I have to do that. तो कुछ एक चीजें हैं तो उसमें है इस साल probably I'm doing it. What other goals are on this list? उसमें एक तो था not get an FIR. एक था जैसे डजंट लाइक इट के 3 नए एपिसोड्स. बट मैं सोच रहा हूँ कि 2 कर लूँगा तो भी बहुत है. बट मैं क्योंकि उसमें तभी करूँगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है आइडिया पे. और एक था आई वांटेड टू क्रिएट समथिंग फॉर माय पंजाबी कल्चर. You were telling me about this. Be it a journey through अमृतसर और मे बी भांगड़ा का एक डॉकू टाइप फन डॉक्यूमेंट्री. So I would have loved that. I was so interested when you were telling me in Delhi also. This Bhangra documentary sounds great. हाँ, because भंगड़ा generally when you hear this word तो तुम्हारे दिमाग में होता है क्या है कि it's a dance form that anybody can do जब शादी में नाच रहे हैं. That's it. But otherwise ये डांस फॉर्म वो है जो किसी स्टेट का फोक डांस है. It's just like you say कि भारतनाट्यम तुम शादी में करते हो. It's not true, right? Yeah. तो उसी का ही काउंटर पार्ट पंजाब का भांगड़ा है. हाँ. Right? It's a folk song. Yeah. It's a folk dance of that state. Yeah. तो how is it that एक बाकी स्टेट्स के डांस फॉर्म को तुम एकदम क्लासिकल और वो समझ रहे हो और जस्ट बिकॉज दिस वाज अ मोर पॉपुलर कल्चर यू थॉट कि ये तो कुछ भी है, ये सब कुछ वही है. इट इज प्रॉपर डांस फॉर्म डूड. एंड भंगड़ा इज नॉट जस्ट वन डांस फॉर्म. पंजाब में बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं, उनका कोलैबोरेशन है. Right. ये वाला अलग अलग डांस फॉर्म्स का. You know, I used to be a folk dancer growing up. What kind of folk dance? गुजराती? नहीं, I used to do ऐसा. I was like in 4th standard. I used to do कोल्ही लोग का डांस and कौन सा लाभ? कोल्ही लोग जो इधर फिशरमैन जो रहता है ना महाराष्ट्र में. ओला. हाँ वो is very interesting to look at. It's really fun to do also. There's a lot of like good and it's close to kind of garba. So there's a lot of circular swinging. Circular motions. You do like this. You go to one side, then you turn around, and then oh, बहुत fun. Actually, I was in my. You're great at dancing generally also, no? You're freaking good at dancing. Yeah, मतलब because मैं trained to folk dance. Exactly. हाँ मैं trained हूँ. उसमें I was in inter college inter university for 3 years. तो उसके मतलब it's a skill that once you have it, you have it. Right. I know the science behind it. I know the movement behind it. Right. So भांगड़ा का simple फंडा होता है. Then when you dance, so if you look at someone doing भांगड़ा, तो you feel कि people are moving their hands. Yeah. Basically, you don't move your hands, you move your shoulders. Yeah. तो वो basic एक technique है. Yeah. How the dance form works. तो वो आती है अब तो I can do anytime. Right. तो मेरे वो जो डांस फॉर्म you told me वो मैंने तब देखा था. I was in my university. 2010 में नेशनल यूथ फेस्टिवल होता है
वो हमारी यूनिवर्सिटी में होस्ट हुआ था. हाँ. तो पीपल फ्रॉम ऑल द स्टेट्स वर देयर हाँ. विद द डांस फॉर्म. तो उस दिन मैंने बहुत सारे डांस फॉर्म देखे, अलग अलग तरीके के, जो आइडिया भी नहीं था एग्जिस्ट करते हैं. क्या फन था ब्रो, बहुत ज्यादा फन. That's one fun thing. एक गोवन डांस फॉर्म था, उसके गाने की ट्यून मेरे को अभी तक याद है. आई डिडंट नो व्हाट दे आर सेइंग. आई हैड सो मच फन वाचिंग इट. What was the tune? Do do dun da da dun. I have no clue And you कि वो remember क्या it बोल रहे थे, बट मेरे को आज तक वो ट्यून याद है. बिकॉज यार म्यूजिक इज समथिंग, है तो है. Now as a comic also you hang out with so many musicians. हाँ, some musician I hang out with. I know some people जो म्यूजिक में है, who know me as well. Yeah. Like hip hop में I know Prabdeep. I think मेरे ख्याल से वो सबसे अच्छा हिप हॉप आर्टिस्ट है इस पॉइंट पे, बिकॉज आई रिलेट टू हिज लिरिक्स. वो जो वो लिखता है, आई फील कि ये मेरे लिए लिख रहा है. हाँ. वैसा सीन है. जनरली तुम होता है लार्जर देन लाइफ फील करते हो, बट उसको देख के मुझे लगता है ये हूँ मैं. You know when I had put out Dear Homeopaths, I wanted to use Prabdeep का गाना, and I wanted to use Maya only, because I was sure कि this is the only 20-minute stand-up video that's gonna keep trending properly, and it'll trend for a week. I fucking knew it, so I wanted to put just that hook of and then you used it in your video, and I felt like no, this makes so much more sense because you actually changed the scene when you put out the videos. हाँ, I had that thought in my mind when I Yeah. heard that song, because I feel तो ऐसा मेरे को लगता है, बाकी लोगों को भी लगता ही होगा शायद हम ही डिसरप्टर हैं मार्केट के. समझ रहे, काफी लोगों को लगता होगा ना कि मैं ही अलग कर रहा हूँ. सबको ये लगता है ना मैं अच्छा कर रहा हूँ, बाकी दुनिया मेरे को खराब ट्रीट कर रही है. तो हो सकता है मैं भी उस स्पेस में हूँ, बट आई फील मतलब फ्रॉम व्हाट आई हर्ड फ्रॉम अदर पीपल, comics that didn't know me before, and they told me what they thought about me when that thing happened in my career. Yeah. So then I feel कि शायद I was one of the disruptors of the market. Yeah. But, you know, it's very, you know, जिसे हम कहते हैं being a comic वाला सीन है, तुम्हें उस पॉइंट पे पता लगता है, but after a while you feel कि शायद मैं इतना ज़्यादा अपना self obsessed तो नहीं हो गया. तो I don't really know, but No, मेरे को वो it's- है, I use that song because it says that I'm just watching what is happening and I'm doing my own shit. That's it. Yeah. So I'm pretty chilled out that way. मेरे को है मतलब it's not that I'm never in a rush, I'm never insecure, but like एक होता है ना basic nature. हाँ. वो है कि तुम करो फिर मैं देखता हूँ अपना. हाँ. Like I'll do my thing आराम से. I like that you are very vocal about the insecurity. Like you have never, whenever I talk to you, it's like 1 hour of I download what's going on in Jesse's life. And you've never shied away from saying हाँ मुझे इधर ये फील हो रहा है इस बात के बारे में ऐसा, या फिर उस बात के बारे में वैसा. ये मतलब so in that video जो जिसमें मैंने गाना यूज किया है, उसमें मैं स्टार्टिंग बोलता हूँ आई एम वेरी टॉकेटिव. Yeah. राइट. मेरी बचपन से स्कूल में शिकायत ये लगी है कि लड़का ठीक है सब कुछ है, बात इतनी को करता है. Yeah. अब सो इट्स मेरे को अच्छा लगता है बात करना. लाइक आई डू स्टैंड अप, सिंपल फंडा. 2 रीजन है स्टैंड अप करने के. मेरे को चुटकुले अच्छे लगते हैं जब कोई हंसता है, मेरे को बात करना अच्छा लगता है. दोनों का मिश्रण स्टैंड अप कॉमेडी, बेस्ट प्रोफेशन इन लाइफ. लाइक जिस दिन मेरे को पता लगा स्टैंड अप एग्जिस्ट करता है, इट वाज अक्टूबर नवंबर ऑफ 2014. Okay. एंड उसी दिन मैंने बोला ओके ये इंडिया में हो रहा है, कह रहा हो रहा है, मैं क्या करना है. Where did you go? मेरे को मार्च में अगले साल स्पॉट मिला एट या. तो उसके बाद मैं 2-3 महीने देखा. आई जॉइंड फेसबुक बिकॉज पता लगा इवेंट फेसबुक पे होते हैं. आई हैड नो क्लू. आई वाज नॉट ऑन सोशल मीडिया. मेरे को था कि मतलब सोशल मीडिया क्यों चाहिए, 4 दोस्त होते हैं जिंदगी में, फोन करूंगा उनको मैं. राइट. तो आई जॉइंड फेसबुक, वहाँ पे इवेंट फॉलो करे. नेक्स्ट मैंने सोचा कि बिफोर गेटिंग ऑन स्टेज फॉर स्टैंड अप कॉमेडी, ये सब पब्लिक में जाके लेट मी ट्राई टू सी कि मेरे में वो स्टेज प्रेजेंस है कि नहीं जो मेरे कॉलेज में थी. बिकॉज कॉलेज में मतलब मैंने ऐसा कुछ किया. You've been a folk dancer, so you know what it's like to I've be. been a comic as well. I've done like skits and I've done single Monologues. comedy acts as well, multiple characters wala. And I had like people chanting my name in the auditorium at that point in time. तो मेरे को वो था ऐसा कि क्या मेरे में वो अभी like timing है. मेरे को काफी लोगों ने बोला you try for laughter challenge when I was in college. मेरे को था नहीं टीवी नहीं करना. तो मेरे को टाइमिंग के लिए लोग बोलते थे कि टाइमिंग बहुत अच्छी है. लाइक वो एकदम खटाई कोई टाइमिंग है. तो मेरे को वो देखना था कि क्या मेरे में वो वाइब है अभी कि नहीं है जो मैं कॉलेज में करता था. तो बिफोर गेटिंग ऑन स्टेज मैंने अपनी कंपनी में बोला. आई वाज इन सैमसंग एट दैट पॉइंट टाइम. तो सैमसंग में मैं नोन था थोड़ा सा बिकॉज वहाँ पे डांस कॉम्पिटिशन हुआ. मैं उससे पहली कंपनी में मैंने एक दिन एक ग्रुप को भंगड़ा करते देखा. मैं बोला ये बहुत गंदा करा है इन्होंने. इट वाज रियली बैड. बट मैं सोचा फिर मैं कंप्लेंट क्यों करूँ जब मैं उनको दिखा नहीं सकता कि रियल कैसा हो सकता है. देन आई परफॉर्म्ड माय एक्ट. मेरे को था मैं कहाँ टीम इकट्ठी करूँ, कौन जानता हूँ, है नहीं कंपनी. मैंने अपना जाके सिंगल बंदे भागना करके आया. आई गॉट द फर्स्ट प्राइज. मैं बढ़िया. तो उसके बाद दे डिड सम कॉमेडी इवेंट एड मैट टाइप. आई गॉट द फर्स्ट प्राइज. एवरीबडी न्यू मी इन द कंपनी. तो मैंने एचआर को जाकर बोला, मैं आई थिंक आई वांट टू डू स्मॉल एक्ट, 15 मिनट का एक्ट.
स्टैंड अप कॉमेडी एक चीज़ होती है, आई वांट टू डू दैट बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू सी कि मेरे में वो प्लेयर है कि नहीं है, हाँ. मेरी वो टाइमिंग है कि नहीं है. बट वो 15 मिनट बहुत फटा. एंड ऑब्वियस But I like this. You went to your HR and said मेरे को कॉमेडी करने गए. हाँ तो उसने सेटअप कर दिया. हाँ एडिट हाँ उसने बोला करो. आई वाज नोन इन द कंपनी एट दैट पॉइंट टाइम. No, it's just okay. So your first open mic was basically then the company open mic. या Your own. एंड इट वाज नॉट लाइक कि मैं ऐसा लाइक हो ना कि 15 लोग आए हैं सब लोग कंपनी एम्प्लॉइज एंगेजमेंट वैसा वाला सीन था. इट वाज जस्ट मी परफॉर्मिंग. उन्होंने मेरे को 15 मिनट दे दिए कि तू कर कितने देर करेगा. मैंने लिख लिया. मैं कहा ठीक है. तो ऑनेस्टली आई विल बी वेरी ऑनेस्ट उस टाइम पे ऑब्वियसली आई लिफ्टेड जोक्स बट नॉट ऑल. आई लिफ्टेड अराउंड 4 मिनट्स ऑफ जोक्स रैंडम. और ऐसा भी नहीं कि मैंने सोचा कि मैं इसका देख लेता हूँ इसका देख लेता हूँ. जोक सुने हुए हैं आई थॉट ये कर लेते हैं. Yeah. एंड इट्स हार्मलेस बिकॉज मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ एंड आई डोंट इवन नो स्टैंड अप कॉमेडियंस Yeah, कैसे होते yeah, हैं. no, everybody like मैं जब पहले बचपन में मेरे भाई ने मुझे कॉमेडी सेंट्रल प्रेजेंस दिया था 13 सीजन भर के. तो मैं वो देखता था और मुझे आई कुडंट माय ब्रेन कुडंट प्रोसेस कि ये आदमी से बात कर रहा है यार. लाइक दिस पर्सन इज जस्ट और सब फाट रहा है कमरा. तो मैं जब स्टार्टिंग में बिफोर इवन कॉमेडी स्कूल के टाइम पे और मैं वही जोक्स लोगों को सुनाता था और मेरे पर मैं हंसते नहीं थे लोग. तो मैंने उस 4 मिनट मैं 15 मिनट किया था 15-16 3-4 मिनट में ऐसे रैंडम जोक्स ऐसा नहीं किसी का सेट उठा लिया. रैंडम जोक्स के और एक जोक था वो अच्छा लगता है मेरे को. हाँ सुना देते क्या जाता है. उस टाइम पे आई हैड बागबान जोक. आई हैड दैट जोक. आई हैड कपल ऑफ अदर जोक्स स्मॉल एंड आई हैड 5-6 मिनट्स ऑन जस्ट माई कंपनी. So you wrote the first bit also before you did a first proper open mic. या तो मेरा मतलब बागबान जोक ऐसा अलग तरीके से था. मतलब इट वाज नॉट लाइक बेटर रिटन. Did you do this thing where you would say something funny before comedy कि तू कुछ funny बोल रहा है किसी को और फिर वो हंस रहे and then you remember that कि इस पे हंसे थे and then you would somehow naturally use that line with other friends at some point. ऐसा कभी नहीं करता. बिकॉज देख उस फ्रेंड सर्कल वाला फनी मैं हमेशा नया तरीके से हो सकता हूँ. हाँ. तो उसमें मतलब उस पॉइंट पे वो नहीं था ना जैसे अभी हम सोचते हैं कि मटेरियल रख लेते हैं कल को किसी को बेच देंगे. वैसा नहीं होता ना. उस पॉइंट होता है मेरे को अभी मेरे चाहिए मेरे दोस्त हंस रहे हो हाँ. तो मैं कुछ भी करूंगा उसके लिए. राइट. अगले फ्रेंड सर्कल में अगला ग्रुप है मैं उसमें नई चीज बोल दूंगा. हाँ. क्योंकि दिमाग मेरा कॉमेडी क्रिएट कर पा रहा है ना. हाँ. तो उस टाइम पे वो भी प्रेशर नहीं कि प्रोफेशनल काम कर रहा हो तो मेरे को इसको सेव करना है कंजर्व करना है. इट्स लाइक लो ना चुटकुले हंसो तुम. तो आई वाज ऑलवेज गुड एट ऐसा जो खास दोस्त जो है मेरे आई इंसल्ट देम अ लॉट लाइक नॉर्मल फ्रेंडशिप. I feel it. हाँ मतलब ऑनेस्टली जिनको तो मैं मतलब if I dislike them तो I'll just say a sarcastic comment once in a while but I'll say it in front of them because कई बार क्या होता है लोग समझते नहीं इस बात को यार. You need to realize this thing that there are some things which you don't mean but because it's right in front of you so you have to say it. Exactly. The point is अगर मैं तेरे को मतलब समझ रहा अगर कोई बंदा अभी मेरे को जानता नहीं है कुछ अजीब तरीके का पहन के आया है समझ रहे उसने कुछ ऐसा कलर पहना हुआ है जिसके ऊपर आई हैव अ रेफरेंस. Then you have to चाहे say मैं पहली बार मिला हूं बट सिंपल फंडा अगर मैंने सोच लिया है तो मैं बोलूंगा. समझ रहे यू कांट जस्ट कंट्रोल इट यू हैव टू से इट. एंड मेरे साथ तो इट हैपेंस कि मैं पहले बोलता हूं फिर रियलाइज करता हूं अरे निकल गया डूड लाइक इट्स सो नीचे. वो चीज है अगर मैंने सोच लिया अगर मैं तब नहीं बोलूंगा ना मैं 15 मिनट बोलूंगा यार एक बात थी दिमाग में ना ऐसा तो क्या करना चाहिए अगर बोल दो मैं यार मतलब it's just funny. समझ रहे हो you have to say the funny shit. दुनिया में इतना प्रेशर है यार रिलीज करो दुनिया में प्रेशर थोड़ा सा. क्या हो गया अगर कोई चीज थॉट है दिमाग में वो बोलना ही चाहिए. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू मीन इट. इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर मैं कोई लाइक समझ रहे पॉलिटिकल रेफरेंस दे रहा हूँ या किसी बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ तो आई रियली मीन इट. लाइक आई डू जोक्स ऑन rappers but I love rap. Exactly. But you still you can love something and also make fun of it. जोक करने के लिए you need to have good information about that thing also. वो भी रिसर्च भी एक चीज है ना कॉमेडी में. Exactly. Like how could I joke about female clothing when I don't know the menu? Right. मैंने जब like I was ordering stuff for her like since a long time because long distance तो मेरे को होता था मैं अभी आज तो मैं ये दूंगा तुम देखने जा रहे हो फिर तुम पहले तुम देखते हो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर तुम देखते हो ये कुछ भी होता है क्या ये भी होता है ये मेरे फैन जो 15 की बरात देख रहा हूँ वहाँ पे जिंदगी में मेरे को भेज नहीं बट मैं देख रहा हूँ लाइक आई कैन बेट विद एनीबॉडी कि मेरे को ज्यादा तरीके की पता है बिकॉज मैंने वो मेन्यू में रिसर्च किया ना. वो चीज है. दैट्स कंप्लीटली ट्रू. यू हैव टू से इट. और वो तो ये तो वो वाली भी बात है लाइक व्हाट. हां उसको आजा पवन आजा. ये कैसे पवन है जो कमरे में बंद होगी. अब ये आई डोंट मीन इट बट आई वांट टू से इट दैट्स इट. तो मैंने कंपनी में जब किया ना वो 15 मिनट so it killed like anything. People lost their shit because nobody has seen that and everybody knew me. And company jokes
Yeah, that is the best ना. Like company joke. जब भी कॉलेज में भी जब open And mic. not like समझ रहा है कि HR ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं. नहीं. प्रॉपर Specifics. उस पॉलिसी में ये दिक्कत है. उसमें ये दिक्कत है. My HR vice president announced me on stage because he used to host all the events. So he announced me on stage, Jaspreet Singh, stand up. I just went on stage and called his name and said, ये सर बहुत अच्छे इंसान है. मैंने उनको बोला मेरे को स्टैंड अप कॉमेडी करनी है. इन्होंने बोला तू कर, बिल्कुल कर. तू एक बार मेरे को स्क्रिप्ट पढ़ा दियो अपनी. मैंने उनको स्क्रिप्ट दी. इन्होंने बोला एक छोटा चेंज कर दे. मैंने स्क्रिप्ट देखी, उसमें वो चेंज था कि स्टार्टिंग में बोल दियो कि ये वाले सर बहुत अच्छे इंसान है. That's it. People lost their shit. Such a simple joke. People lost their shit. Yeah, dude, there is. क्योंकि उस बंदे ने अनाउंस किया वो VP है कंपनी में, HR VP है, और मैं जाके पहले उस पे मार रहा हूँ. Great. And it just sets the tone ना कि like देखो अभी सब. And if he laughs, then तो खलास, then तो भाई मजे. उस दिन भाई लेट कैसे दुनिया, लेट कैसे दुनिया. It was such a good show. Because किसी को पता नहीं था क्या हो रहा है. और secondly, you are one of them. Yeah. That's why. That's the beauty of it. And now you had good 3 months to figure out कि अभी मेरे को पहले open mic में क्या करने का है. हाँ, मतलब मैं लिख रहा था, कुछ सोच रहा था. Obviously काफी हैकी जोक थे, hopefully कुछ इंस्पायर्ड भी थे. बिकॉज जब पता ही नहीं है मार्केट में कैसा स्टैंड अप होता है, मेरे को लगता है जो लोग मैं ऐसा वीडियो देख रहा हूँ जिनकी ये एग्जिस्ट नहीं करते लाइफ में, ये ऐसा मिलने नहीं वाले मेरे को. राइट, मैंने 3-4 लोग देखे, मही जीवेशु देखे, अभिजीत गांगुली की शायद एक आध वीडियो थी. हाँ, अभिजीत की थी. जाकिर आई एम नॉट श्योर उस टाइम पे शायद एनडीटी वाली थी. मेरे को लगा ये लोग मिलेंगे थोड़ी मेरे को. ये तो मतलब स्टैंड अप कॉमेडियंस है ना, ये को मिलेंगे मेरे को, ये थोड़ी आते होंगे कहीं पे. तो तब मैंने ट्राई करना शुरू किया. गॉट लाइक 3-4 मेल्स करे लोगों को. किसी ने बोला 3 ब्रिंगर लेके आओ. मैं कहा 3 ब्रिंगर, इतने मेरे को दिल्ली में लोग नहीं जानते. एंड सेकेंडली मैं कोलीग्स भी लेके जा सकता हूँ अपने, बट जब तक मैं अच्छा नहीं कर रहा तो मैं किसी के सामने बेइज्जती कराऊंगा अपनी. अनजान लोगों के सामने बेइज्जती करानी सही रहती ना. मैं क्या उनको बोलूँ कि भाई मैं शायद हग दूँ स्टेज पे, बट तुम साथ में चलोगे क्या? नहीं. तो मैंने कहा आई विल वेट, जब कोई स्पॉट मिलेगा तब करता हूँ. तो मार्च 15 को मिला मेरे को पहला. किधर किया? एंटी सोशल हॉस्कास. एंड इट्स you had also moved, right? You moved from Punjab to Delhi around in adulthood. 11th. हाँ, 2011 मेरे बेटा की खत्म हुई, तो फाइनल सेमेस्टर हुआ था, ट्रेनिंग सेमेस्टर. तो मेरा जिस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ, दे ऑफर्ड मी 6 months ट्रेनिंग एज वेल. कि तुम 3-4 महीने ट्रेनिंग करो, फिर तुम्हें पक्का ही कर देंगे, जॉब में दे देंगे. तो मेरे को 4 महीने में जॉब मिल गई थी वहीं पे ही. बट देन आई लेफ्ट. क्यों? मतलब यार वो ऐसा, मतलब आई डोंट वांट टू इंस्पायर एनीबॉडी बाय सेइंग दैट कि मतलब तुम भी ऐसा कर लो. बट नाइट शिफ्ट दे रहे थे यार, मेरे को करनी नहीं थी नाइट शिफ्ट. भाई ने बोला मैं कोई कहीं जिंदगी कोई तेरे, तो मैं भाई के साथ रहता. भैया भाभी की नई शादी हुई थी 11 में, तो उनके साथ ही रह रहा था. तो उन्होंने बोला कि मतलब यार मतलब कोई और ढूंढ लेंगे जॉब, मतलब नाइट शिफ्ट क्यों करनी. कहता है फायदा वायदा है नहीं ये सपोर्ट में जाने का, अगर तेरे को अच्छा कुछ करना. हाँ, बट मर्जी है ना, मर्जी है. उसमें एक दिन मेरा हो गया थोड़ा सा लाइक, कोई तो वो था यार ऐसा फेस्टिवल टाइप. तो मैं रात को मेरी सुबह 6 बजे शिफ्ट थी मेरी उस दिन. मेरी तो हर महीने चेंज होती थी. आई विल हैव 2 weeks ऑफ 1 शिफ्ट एंड 1 वीक ऑफ अदर शिफ्ट. 3 शिफ्ट होती दिन में. तो 6 बजे शिफ्ट थी मेरी. तो मैं गया वहाँ पे 7 बजे के अराउंड में, सोचा नाश्ता करते हैं. मैं नीचे कैफेटेरिया गया, कैफेटेरिया बंद था. कंपनी में खाली है. कंपनी में कितने 5-7 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, मतलब 4000 की जगह में 10 लोग होंगे, पता थोड़ी में कहाँ. तो वो भी खाली बंद था. बाहर गया, पराठे वाला भी नहीं था. मैं क्या मतलब like I am getting money and I'm not able to get food right now, and Swiggy वगैरह कुछ नहीं था. 11. तो मैं कहा मतलब मेरे को खाना है, भूख लगी मेरे को. तो I just left. I went home. I said okay. मेरे को जो मेल नहीं डाला, मैं चला घर. अगले दिन नॉर्मली ऑफिस आ गया, वापस में आके I didn't tell anybody कि मैं चला गया. मैं कहा ठीक है, तो खाना मेरे को भूख लगी है. हाँ, Did anyone mind? Nobody got to know. इतनी वही है ना, आमिर खान कहता ना, इतनी भीड़ है किसी को क्या पता लग रहा है. हाँ, वही सीन है. मुझे इंटरेस्टिंग ये लगता है कि मैं नाइट शिफ्ट करता था ना. तो रात को ऐसा हमारे पास स्लीपिंग रूम था एक, कि रात को थोड़ा रेस्ट चाहिए हो तो सो सकते हो. तो मैं और मेरा लीड, प्रोजेक्ट लीड, वो चिल था. वो कह रहा हम दोनों बकचोदी करेंगे, बट तू किसी को बताएगा नहीं मैं ऐसा आदमी हूँ. लाइक आई हैव टू बी स्क्रिप्ट, पर तेरे बन चुकी है तो इसलिए, क्योंकि उसने मेरे साथ ही ज्वाइन किया था. वो ज्वाइन द सेम कंपनी सेम टाइम, तो ही न्यू मी. जयजीत, ग्रेट गाय. तो उसने बोला कि हम बकचोदी करेंगे, बट तू किसी को बताएगा नहीं. वो रात को गेम में खेलता था. मैं बोला सर टीटी खेलना आता आपको? कह रहा हाँ. उसने मेरे को 3 मिनट टीटी सिखाया. हम रात को 12 से 4 टीटी खेलते थे रोज. तो कई बार मैं ऐसा होता ना 3 में नींद आ रही है, मैं कह रहा हूँ सर सो जाऊँ थोड़ी देर. कह रहा हाँ सोया. मैं एक दिन सोया, तो मैं सो गया. फिर सुबह 6 बजे नीचे आया, तो अगली शिफ्ट आई. उसने बोला शर्ट पे क्रीजेस हैं. मैं कहा हाँ यार, वो यहाँ बैठे लेट गया थोड़ी देर. हाँ क्या ठीक है. मेरे को तब रियलाइज हुआ कि ऐसा सोने से ना शर्ट खराब होती है. तो ऊपर जाकर शर्ट उतार के सोने लग गया अपने ऑफिस की स्लीपिंग रूम में. ऊपर जा रहा हूँ, उसमें बेड लगा हुआ, साइड पे शर्ट टांगा, सो जा बनान पहन के. आते सुबह शर्ट क्रीज मस्त एकदम बढ़िया लेके आओ.
Yeah, but you know it's interesting because you fit the archetype of कैसा होना चाहिए comedian. Like बिंदास आदमी है जिसको जो करना है वो करेगा. हाँ. Strong opinions, talkative. The only thing I don't have is to look funny. एक comedian का वो होता है ना कि तुम्हें funny दिखना है. I just want to look as normal a person as possible. Because मेरा मैं करना चाहता हूँ stand up in term मतलब जो मैं करना नहीं चाहता but मैं हूँ भी that I am one of my audience. That's it. मेरे को वही आदमी मैं हूँ. But that's literally what the stand up is like. हाँ बट एक होता है ना कि like your spend specifically like बहुत सारा लोग का एकदम मेरा तो कितना random ही होता है but you are talking about just day to day shit in the most like normal day to day way. But I look out in the same way as well ना कि मैं ऐसा मतलब ऐसा famous vibe नहीं देता मैं किसी को generally like I still look like I'm going to my office in a while right. Yeah. तो मैं बीवी से बहुत डिस्कस करता हूँ like how do I look that I'm not doing a job. Yeah. How do I look that way? But you can't look that way. It's like a mental thing ना तू carry कैसे करता है अपने आप को? Right. जब मैं टीनेजर था तो मुझे लगता था कि यार शर्ट टी-शर्ट बॉयज पहनते हैं men wear shirts. तो मैं कॉलेज थ्रू आउट शर्ट्स पहन के जाता था 3 फोल्ड करके. This is my style since 2007. समझ रहा है शर्ट बाहर 4 फोल्ड. Is this how you met your girlfriend also? Or your wife now? हाँ. Were you like this when you met your wife also? Yeah. Has she not tried to change? No. She always said कि तू शर्ट में अच्छा लगता है. हाँ. मैं हमेशा यही स्टाइल. Y'all met when? In 2006. Okay. 12th. Oh fuck 12th. And you started dating then only? हाँ. She proposed. I said yes. और तब से it's just it's amazing to me क्योंकि your relationship is the least complicated thing I've ever. नहीं मतलब अपने झगड़े कांड तो हैं ही. नहीं I'm sure but वैसा नहीं है कि मतलब चल थोड़ी देर करके देखते because honestly जितना मर्जी तो बोले but your thought process and मैं बहुत ही मतलब समझ रहा है जैसे तुम कहते हो ना सिंपल सा बैकग्राउंड ओल्ड स्कूल टाइप वैसा सीन है. लाइक मेरे को प्रपोज आया मैं तब सोच रहा था मैं यार ऐसा लड़की के साथ गलत नहीं करना होता है जसप्रीत यू आर गुड बॉय नो ऐसा शीशे देख के खुद से बात कर रहा हूँ समझ रहा है. तो वो सीन था. तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था ना लाइक तब तो ब्रेकअप वर्ड भी नहीं पता था वो चीज़ें नहीं पता था. हाँ. तो वो सीन है ऐसा. नहीं पर अभी I mean anybody who's in their early 30s also if you have grown up the number one difference is options. Right like you have especially now there's an app तो अगर तू झगड़ा हो गया तो ऐप पे तुम जा सकते हो कभी भी तो वो एक ऑप्शन का एक वो रहता है. Right, but in your head there must have been some wall against that ना कि मतलब ये है तो ये है because there must have been moments where you felt like ये नहीं करना है. मतलब ये रिलेशनशिप हाँ मतलब होता है ना कभी क्या ही कर रहे हैं यार बट स्टार्टिंग में तो लाइक व्हेन यू आर सो यंग तो यू गेट यू नो काफ़ी बिकॉज दैट इज द पॉइंट जब तुम्हारी ऐसे फीलिंग जाग रही होती ज़िंदगी में तो यू फील लाइक कि मतलब क्या सही है यार लाइक कोई इज्जत दे रहा है यार मेरे को कोई मेरे से मतलब ऐसे प्यार से बात कर रहा है आप करके बात कर रहा है मुझसे समझ रहे हैं और मैं मतलब और दैट वाज द टाइम व्हेन वी यूज्ड टू मीट लाइक 30 minutes in 2 months. Oh wow, why? Because स्कूल में हम मिल नहीं पाते थे. एक बार स्कूल में हमने बात करी तो पूरे स्कूल को पता लग गया कि ये डेट कर रहे हैं. तो ऐसा समझ रहे बहुत छोटे शहर से हूँ मैं उस तरह से देखा जाए तो. अभी तो हम हो गए मॉडर्न बट हमने एक बार बात करी सबको पता लग गया. और ऐसे टीचर गाने मार रहे हैं उसके सामने जाते हैं जसप्रीत आजकल ध्यान नहीं दे रहा पढ़ाई में बिकॉज आई वाज पॉपुलर इन स्कूल एज वेल. एवरीबडी न्यू मी कि ये बंदा कोई है ये सब बकचोदियां करता है ये कुछ बोलता है ये कुछ करता है क्लास में जिसकी वजह से सब हंसते हैं कुछ तो कर रहा है आदमी. तो आई यूज्ड टू हैव लाइक अ गर्ल्स ग्रुप अराउंड मी ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ कि ये बंदा फनी है इसके साथ रहना है इसका चिल करना है इसका घूमना है. तो आई यूज्ड टू हैव दैट ग्रुप एंड मैं जनरली भी थोड़ा ऐसा फीमेल फ्रेंडली आदमी हूँ तो उस मामले में सही रहता था. तो यूज्ड टू एंजॉय माय कंपनी. लॉन्डे वॉन्डे ये पता क्या लॉन्डो तो मेरी ना ग्रुप में बहुत कम लोगों से बनती थी. मेरे को सिर्फ आदमी में ना मेरे को 2-3 क्वालिटी चाहिए सिर्फ ऐसा फ्रेंडशिप के लिए. किसी में भी 2-3 क्वालिटी चाहिए फ्रेंडशिप के लिए. वो है कि मेरे लिए दोस्ती बड़ी सिंपल चीज़ है. दोस्ती का मतलब है मैं तेरे को बोला ना कि चल चलते हैं तू बोले चलो या किधर कहाँ कब क्यों नथिंग मैं बोला चल दैट्स इट. दैट इज फ्रेंडशिप फॉर मी. तो मेरे को और सेकेंडली मेरे को ना ये जो लौंडे होते हैं ना जो ऐसा ये लड़कियां डिस्कस करते हैं जो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम यू आर अ फक बॉय यू आर अ बैड ह्यूमन बीइंग यू थिंक बैड अबाउट वुमेन you like anonymously put random shit about women. तो तुम्हारे जो गंद है ना अपने अंदर है तो बहुत बड़ी. जब लौंडे ऐसे ग्रुप में करते हैं ना भाई वो देखी तूने भाई साहब वो भाई उसकी वो चीज मेरे को वो बड़ा ही अजीब लगता है बिकॉज आई एग्री. ये मतलब क्या टुच्चो वाली बातें हैं यार ये. तुम like, सोचो मन में सोचो मेरे को कोई परेशानी नहीं है उससे बट जब तुम ऐसा ग्रुप में हो तो भाई उसका वो भाई ऐसा ये मत करो. और उससे ना वो वही तो वो कल्चर हो जाता है ना फिर कि ये एक्टिविटी हो जाता है बंदे लोग को बैठ के करने. ग्रुप में बैठ के अब हम लड़की देख वो मेरे को ऐसा लगता है मैं तो मैं चांटिंग है तुम्हारे. दैट इज रियली वो तो मैं I used to feel at that time that I'm not a very good looking guy.
which I think I was not. Even right now I look like a regular guy, right? ऐसा मेरा कोई ऐसा फीचर नहीं है जो तुम ऐसा मतलब समझ रहा है कि मैं किसी के ऐसे अटेंशन पकड़ लूँ, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मैं थोड़ी फनी बातें कर लेता हूँ, राइट? और मैं अभी थोड़ा डिसेंट ड्रेस अप हो जाता हूँ. No, but I think you can catch attention in any room, dude. तू क्या बात कर रहा है? तू बचपन से ये कर रहा है. उस टाइम पे the point was till 10th I was so short. I was shorter than all the girls in my class. Attendance में second number पे खड़ा होता था. Other guys were having like heavier beards and they were growing up and they were and I was totally चिकना. Yeah. तो I used to feel like I'm not like them. और मेरी height भी कम है बहुत. तो nobody is gonna be impressed by me or interested in me. तो मेरे दिमाग में वो था एक बार, हमेशा से था वैसा वाला. तो मेरे को लगता था कि यार नहीं, मुझसे क्यों बात करेगा कोई. तो इसलिए जब मेरा वो वाला कभी सीन बना भी नहीं लोगों से ये डिस्कस करने वाला, और मेरे को ऐसा उस पॉइंट में एक्चुअली यूज्ड टू फील कि लड़कियों को तो बैड बॉयज ही पसंद होते हैं जो ऐसा बाइक वाइक लेके आ रहे हैं स्कूल में. क्योंकि मैं साइकिल पे आ रहा था 11वीं तक, 12वीं में डैड ने दे दिया स्कूटर, क्योंकि अभी वो ट्यूशन पे जाना 3 दिन बाद, तो इसलिए. तो मेरे को लगता था ऐसा सीन तो नहीं होगा. तो वो उस टाइम पे भी लौंडे डिस्कस करते थे, लाइक 9वीं 10वीं से जवान हो गए थे, वो डिस्कस करते थे. मेरे को तुम जो मर्जी करो, बट ये बात डिस्कस कौन करता है ग्रुप में यार? ऑनेस्टली टिल डेट मैंने मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है एक, we've never sat ऐसे में, और मेरे स्कूल के ग्रुप में भी that was never a conversation. we never discussed anybody's looks, कैसे दिखते हैं, क्या पहना. मेरे को वो थोड़ा लीचड़ काम लगता है. मेरे जो खास दोस्त है, एंड आई एम लकी, मेरे दोस्त भी वैसे बने, मतलब मर्दों में like attracts like ना, मर्दों में मेरे दोस्त बने, एक सौरभ, एक गौरव, एक यूएस में, दूसरा आर्मी really? में. हाँ, बाय जस्ट कोइंसिडेंस. एक आर्मी में है, दूसरा यूएस में है. अभी हमने कभी ऐसा डिस्कस नहीं किया कभी भी किसी भी ऐसा लड़की ग्रुप ऑफ लड़कियों के बारे में. कई बार मजाक में तुम कुछ बोल दो, बट ऐसा प्रॉपर तुम ना जैसे डाइसेक्ट कर रहे हो किसी के लुक्स, किसी का अपेयरेंस, वो मेरे को थोड़ा लीचड़ लगता था. स्कूल में भी लोग करते, तो मेरा सर्कल बहुत लड़कों में बहुत कम था. लड़कियां थोड़ी जनरली फ्रेंडशिप में थोड़ी ऑनेस्ट रहती है मेरे ख्याल से. I feel like women are easier to be friends with than men are. और उसमें भी ऐसा है ना कि a guy and a girl can be a better set of friends than a girl and a girl tend to be, in the sense कि एक वो opposite वाला dynamic है ना. Opposite dynamic मेरे को लगता है होता ही होगा, because natural नहीं है ये वाला ना. हाँ ना, but I don't really can put it in positions कि guy girl friendship is better than girl or boy, because that's just between two people, I think so. Yeah, that's also true. Like मेरे अब female friends में my friend, one of the closest friends of mine, Alia, she is in London right now. I have not seen her in like 2 years maybe. And मैं उसको पिछले 8 साल में शायद 7 बार मिला हूँ, ऐसा मिला हूँ. But still every time it starts from same point. Of course, that is दोस्ती. Like for me, that's what friendship is. कि मैं तेरे को के लिए मैं गोली खा लूँगा, मैं कोई चक्कर नहीं है था. हाँ. Anything will happen, I will be standing in the way of harm. And it's always that continuity ना. Like ऐसा कुछ, like मेरा बेस्ट फ्रेंड अभी उम्मीद है, उसका भी शादी हो गया. He's on a ship for 8 months 9 months, वो मर्चेंट नेवी में. तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम लोग मिले और फिर एक सेकंड का भी awkwardness या फिर pause या जहाँ अरे ये पता है तेरे को क्या, it just picks up, right? Like वो continuity है. जो मेरा दोस्त गौरव है, I know that guy since 2007. जब मैं डिग्री ज्वाइन किया, and I remember किसी ने मेरे को बताया कि that गौरव said this thing about you, कि उसने बोला ये लड़का कौन है. तो मैं जल्दी थोड़ा सा दिख जाता था लोगों को इन टर्म्स ऑफ कि कुछ ना कुछ कर रहा था मैं लाइफ में ना. और मेरा इंट्रो मांगा उन्होंने, क्लास में इंट्रो मांगा, तो मेरे को पता नहीं क्यों लगा मैं कुछ फनी बोल देता हूँ. आई जस्ट सेड, हॉबीज क्या है, मैं कहा कॉमिक्स पढ़ता चाचा चौधरी की. I just said it, everybody laughed and the professor thought it was disrespectful. I'm like, तो मतलब can't it be a hobby? हाँ. Right? एक बार फिजिक्स की मैडम ने पूछा, हरप्रीत मैम बहुत सुंदर थे यार, वो बहुत वेरी गुड लुकिंग मैम, वेरी गुड लुकिंग, एंड इतने स्वीट, इतने प्यार से बात करते थे. उन्होंने मुझसे कोई सवाल पूछा, शी थॉट कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, और मैं फिजिक्स स्कूल मतलब टॉपर था मैं अपना फिजिक्स में. तो उन्होंने पूछा मुझसे कुछ, तो मैंने कुछ, मतलब वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, पर ना मैं बाई चांस मेरा ध्यान कहीं और था, मैंने उसका ऑपोजिट आंसर दे दिया बिल्कुल ही ना. तो शी आस्क्ड समबडी एल्स, तुम बताओ क्या है. उसने सही बताया. शी लुक्ड एट मी लाइक जसप्रीत, व्हाट इज दिस यार. मैं कहा मैम मैं चेक कर रहा था कि उसको आता कि नहीं आता. एंड everybody laughed. It's not a very funny thing, but it's the timing of it. And it's breaking the hierarchy of it. कि तुम यहाँ जोक क्यों नहीं क्रैक कर सकते. And it's not like I'm making fun, I'm just saying a line. Everybody laughed. तो गौरव ने किसी को बताया, उसने बोला ये लड़का है कौन. This guy, he said exactly, and I quote, he said he's general with a girlfriend. तो मतलब मैं रैंक वाला था, I was not an NRI seat, क्योंकि गौरव खुद NRI सीट है. उसने पैसा ज़्यादा दिया था.
जो डिग्री में 2 लाख में हुई उसकी 8 लाख में हुई थी। तो he said जनरल विद द गर्लफ्रेंड, मतलब उसको पता कि मतलब पहले पढ़ाई भी कर रहा है, उसकी बंदी भी है। मेरे को आज तक नहीं पता उसको कैसे पता था मेरी बंदी है, बट ही सेड दिस थिंग। तो तब से वो दोस्त है, एंड वो दोस्त है कि चल चल। तो सर हमें इतना घुमाया अपनी गाड़ी में, उसके डैड हमारे कॉलेज के डीन थे। उसके डैड मैथ्स क्या कहते हैं उसे, एक्सपर्ट से ऊपर वर्ड होता है ना, एक सवांट मास्टर अंकल, मतलब मैथ जीनियस। हाँ। मैथ जीनियस, लाइक उनको लोग बोलते हैं भाई आ जाओ हमारा प्रोफेसर, हमारा डीन बन जाओ, हमारे वो वीसी बन जाओ, ऐसे इनवाइट्स आते हैं उनको। लाइक नहीं कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। और वो एक बार हमारे प्रोफेसर बने और उनका लड़का 24 नंबर ला रहा है। वो तो थोड़ी देर टेम्परेरी आए थे, बट देन मे बी उन्होंने चेंज कर लिया क्योंकि अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते ना क्लास, तो इसलिए। दूसरा दोस्त सौरभ है, उससे दोस्ती है। वाइल हमारा जो होता है ना, वो कॉलेज ज्वाइन करने से पहले क्या होता है, वो जब तुम लोग बैठे होते फॉर्म भरते कौन से कॉलेज में जाना है, एडमिशन फॉर्म नहीं ये जो होता है ना ऑनलाइन, सी से वर्ड होता है यार, एक तो मैं वर्ड भूल जाता हूँ मैं कई बार यार। जब सारे कॉलेज सब बच्चे आए होते अपना रैंक ले लेके, फिर वो आ जाते 127 रैंक, आ जाओ कौन सा कॉलेज चाहिए यार, प्ले यार जो होता है यार, ऐसा होता है, नहीं याद आ रहा, ऐसा भी होता है। अरे कुछ होता है ना, जैसे मेरा टेस्ट था सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट था मेरा, पंजाब का टेस्ट होता है, उसमें मेरा 218 रैंक था, राइट। तो वो बोल देते ना कि अब ये वाला यार, सॉरी यार मेरे को वर्ड नहीं याद आ रहा, अलॉटमेंट्स, इट मींस दैट ओनली, बट वर्ड नहीं याद आ रहा मेरे को, वो वाला, तो वो वाला वर्ड। तो हम सब वहीं पे बैठे हुए थे, तो सौरभ वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड मोहित उसका बेस्ट फ्रेंड, ही वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। हम तीनों बैठे थे लाइन में, हम सारे तीनों एक ही ग्रुप में थे। तो वी वर जस्ट फिलिंग आउट द फॉर्म डिटेल्स, तो हम चेक लेके आए थे घर से, ड्राफ्ट लेके आए थे, जो था कि जमा करवाना है, तो उस पर लिखा था इसका नंबर लिख दो। तो जस्ट आस्क्ड मी कि भाई इसमें नंबर कौन सा होता है, क्योंकि उसके 2 नंबर होते हैं ना, तो मैं बोला ये होता है। तो कह रहा पक्का, मैं क्या हाँ मेरे डैड बैंक में है, तो दैट्स व्हाई आई नो दिस। कह रहा वो तो मेरे भी डैडी बैंक में ही है। मुझे नहीं पता। ठीक है, हमारी इतनी बात हुई। देन नेक्स्ट टाइम हम दोनों क्लास में सेम बेंच पे बैठे हैं, एंड दैट्स इट। या नेवर आस्क्ड, नेवर सेड एनीथिंग, एंड लाइक बेस्टेस्ट फ्रेंड्स या अभी तक। और उसकी सबसे ज्यादा लाइफ में सबसे ज्यादा बेइज्जती उसकी करता हूँ मैं। वो फौज में, दैट्स हाउ यू शो लव। या फौज में है वो। इज इट द सेम विद योर वाइफ? हाँ, आई वुड से। Do you make a lot of fun of her? Yeah, but not as a sexist fun. नहीं, वो वाला फन क्या, कुछ तो बोल दूंगा, फनी है तो फनी बोल दूंगा। but like with people around or in person? With people around as well. Because लोग ही वही ना जिनको मैं जानता हूँ। हाँ। यही ग्रुप में करता हूँ ना, बाकी ग्रुप में नहीं। हाँ, बाकी ग्रुप में बोल के दिखाओ, तुम मारना ना तुम्हारी में। वो सीन है। Is one of the things you said कि तेरे साल का this year you have won this thing कि you want to not एक और get गोल a रह गया उसमें। एक गोल था इस साल एक शॉर्ट फिल्म लिखनी है और बनानी है। okay, वो तो हो जाएगी। हाँ, बट सीरियस एकदम बढ़िया वाली। Yeah. I'm writing it. Why do you think you are in the category of comics who can get an FIR against them? I don't think I'm a comic who can get an FIR. I think almost every comic is a comic who should not get an FIR. But situation. Right. I just don't trust the situation. But really, at what level? Because it's वो तो ऐसा मतलब फन के लिए मैंने होता ना, जैसे रूल ऑफ 3 और रूल ऑफ 5 कर दिया मैंने कि 4 चीजें एक्चुअल वाले गोल है और ये भी गोल है कि हाँ FIR नहीं होनी चाहिए मेरे नाम से। right. तो वैसा वाले तरीके से You conscious? I don't think you consciously censor at all. नहीं, but I have seen stuff happening around me. Like if some comic, okay, मैं कल भी किसी को बता रहा था ये चीज, तो खुद बता, एक तरफ किसी कॉमिक ने किसी प्रोफेशन पे कोई जोक मारा, हाँ, लोगों ने उसको गालियां दी, हाँ, उसको रिमूव करनी पड़ गई वीडियो, उसने अपोलोजाइज किया वीडियो पे, जो भी प्रोफेशन में जोक मारा, लेट्स लीव गॉड रिलीजन साइड, प्रोफेशन में जोक मारा, ओके। और दूसरी तरफ कोई बंदा मेरे इनबॉक्स में या कमेंट में मेरे को खालिस्तानी बोल के जा रहा है, मेरे को बोल के जा रहा है कि तू बहन जो गद्दार है। हाँ, इन दोनों में से बड़ा क्राइम क्या है? exactly. इसमें बड़ा क्राइम क्या? अगर मैंने बोल दिया कि ये प्रोफेशन ऐसा होता है, क्या उसके प्रोफेशन को फर्क पड़ा? नहीं। क्या लोगों ने उसका ट्रस्ट करना बंद करा? क्या लोग उसके पास काम के लिए बंद? तुम किसी पे जाके प्लेटफॉर्म पे जाके ये बोल दो कि जसप्रीत जो है ये गद्दार है, दैट कैन गेट मी किल्ड, दैट कैन गेट मी फकिंग किल्ड। तो तुम बताओ इन दोनों में बड़ा क्राइम क्या है? तो इसलिए मेरे को लगता है कि सिचुएशन का ट्रस्ट नहीं है मेरे को। नोबडी कैन कॉल मी एनी नेम्स व्हिच इज एंटी इंडिया। यू कांट, लाइक हाउ डू आई प्रूव दैट? That's why they call you that, no? हाँ, तो जब अभी इंडिपेंडेंस डे था, आई जस्ट रोट वन लाइन ऑन माय इंस्टाग्राम कि मेरे पैट्रियोटिज्म इतना ही है कि मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड पे तिरंगा भी पड़ा है और जिस बच्चे ने बेचा उसकी गरीबी भी याद है। I remember that. Right? Yeah. पड़ा हुआ है वहाँ पे और मैं लेना नहीं चाहता था वो। भाई बाय Yeah. लाइक अ ट्राई कलर, ऐसा नहीं कि मैं
मेरे को लगता है वो चीज़ इतनी बड़ी है, इतनी रिस्पेक्टेबल है कि उसको मैं एक बहुत ही ग्रैंड जगह पे देखना चाहूंगा. लाइक व्हेनेवर आई गो टू दिस कनॉट प्लेस, आई सी दैट ट्राई कलर. कितना you feel suddenly you feel proud. Exactly. क्या सही है यार. Yeah. And it's intangible. Yeah. You can't say कि क्या feel हो रहा है. I don't want it to be like the American flag as well though. You know what I mean? Where American flag का कच्चा भी है. हाँ, I never want Indian flag to be used in any kind like of it's not a graphic design. It has a meaning to it. It has a meaning to it because independence बहुत बड़ी चीज है यार. Exactly. वो तुमने जीती है, तुमने ली है. And well, I think मरे हैं उसके लिए. And then you suddenly reach a point when someone can call you anti that thing entirely. Yeah. Like तो कुछ चीज़ होती है that you see कि हाँ ये सही है गलत है, but कुछ I feel कि कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए. समझ रहे? अब मैं वो चीज़ें बोलने में डर भी रहा हूँ कई बार. Like I understand national anthem, respect, I understand, but I think cinema is not a place for it. Sporting events, school, colleges, I understand. Any gathering where you have कोई सरकारी लोग आने वाले हैं और या फिर कोई गवर्नमेंट का चीज है या फिर a new project is beginning, great. But theater, अरे कंपनी का अगर कोई ऑफिस चालू कर रहा है उधर भी बजा लो, कोई स्ट्रेस नहीं. हाँ, even office spaces have flags hoisted. It's great. मतलब जब भी देखते कभी ऐसा नहीं होता कि ये ऐसा कभी होता है. You just look for 2 seconds, then you realize, you register, then you move on. But it's that stupid thing, right? Like I have this line कि patriotism is directly proportional to how many people of your country are around you. You know? क्योंकि नेशनल एंथम अगर मूवी थिएटर में बज रहा है और कोई खड़ा नहीं हुआ तो मैंने तो लोग को मैं लोग को पॉपकॉर्न फेंकते हुए देखा है, मैं लोग को चिल्लाते हुए देखा है दूसरे लोग पे, यार क्या कर रहे हैं. 5 मिनट में लोग मेकआउट करने वाले हैं उसी थिएटर में. हाँ, getting a point. And then at the same time the same fucking guy if he's watching match at home और नेशनल एंथम बता दो म्यूट कर देगा instead of getting up. हाँ, obviously, right? मतलब उसी नेशनल एंथम के बाद तुम क्या क्या कंटेंट दिखा रहे हो. सेक्सिस्ट बातें चल रही हैं, तुम रेसिस्ट बातें कर रहे हो, तुम मतलब समझ रहे हो ऐसा वो कंटेंट दिखा रहे हो जिसमें तुम किसी को भी ऐसे प्रॉपर्ली बुली कर रहे हो, राइट, और जस्टिफाई कर रहे हो उस चीज़ को. वो सब कंटेंट उसके बाद चल रहा है, वो चीज़ है. But I think वो weird वाला space है ना. Like you were talking about this in Punit's podcast also about how Udta Punjab for example is a great example. कि Udta Punjab is one small bubble of like what you said. Na? There is those people exist, but that's not what everybody is. What everybody is. It's true for everything. Yeah, but that's one of the things with movies, right? I know you a long time. मेरे को पता है तू गुजराती है. How many times have we discussed that तू गुजराती है, right? How many times I've seen you saying तू pink t-shirt ये तो गुजराती पहनते होंगे. How many times you said that? Because I come from a place जहाँ पे ये मेरे साथ बहुत हो चुका है. It's like it's done. मतलब it's just old. मतलब कितनी बार तुम वही चुटकुला मारते रहोगे. हमें तो बोल दे तो बहन 2 लोगों की एक लाइन सेम हो जाए, तुम बोलते यार ये तो वही करता है यार. यहाँ पे 2 बंदे हिंदी में बात कर ले, तुम कहते ये तो जाकिर कॉपी करता है यार. कोई बंदा ऐसा मतलब अलग तरीके से मेरा नॉर्थ इंडियन एक्सेंट है ये तो मन्नी कॉपी करता होगा यार. और यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि हम पिछले 60 साल से बहन जो वही सरदार जो करी जाएंगे, वही गुज्जू जो करी जाएंगे. तुम तो फिर तुम अपना अगर तुम अपना स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा सकते तो तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो तुम्हारे लिए कंटेंट बना रहे वो बढ़ाए. तुम देखने में चाहते हो. because comedians so especially every पंजाबी अंकल एवर, every पंजाबी आंटी एवर, पंजाबी आंटी तो जिम कितने लोगों ने कर दिया वो स्पोर्ट्स शूज के साथ, वो आंटियां पहन के जाती हैं. तो अब वो शुरू से सूट पहन रही हैं, अब उन्होंने सोचा कि मैं जिम भी जाना है तो जूते पहनने पड़ेंगे. अब क्या तुम चाहते हो कि वो जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी सूट से नहीं पहना उन्होंने कभी बाहर, हर किसी का अपने फैमिली का हिसाब है. No, and there's a positive way of doing it ना. It's like with मेरे सुषमा वाला जोक में ends with औरत ने साड़ी के नीचे नाइकी का जूता पहन लिया तो फिर वो उखाड़ के रहेगी. हाँ, it's the same joke but it's a positive angle to it instead of positive angle to it. That I respect. क्योंकि उसके बाद में सोचा हाँ अगर किसी औरत ने साड़ी पहनी हुई है मतलब एकदम you know कल्चर ट्रेडिशन सब कुछ, and then she wears sports shoes, she's gonna do something. अभी वो लड़की के आई ना वीडियो, she's doing somersaults, वो क्या होते हैं ऐसा पूरा उल्टा हो जाता है. हाँ, backflips. हाँ, backflip वाला. ओ भाई साहब मतलब यार कम ऑन यार. एक और लड़की की आई थी साड़ी पहनी हुई है, स्पोर्ट्स शूज, एंड शी इज डूइंग दैट हुला हूप. एंड उसके बाद आई फील कि तेरा जो कितना ट्रू है कि जिसने साड़ी के साथ स्पोर्ट्स शूज पहनी, ऑब्वियसली इट्स नॉट ट्रू 10 of 10, but it's true 10 out of like 8 out of 10. Yeah, because you know with my mom you have to realize उसके दिमाग में भी उसको भी पूरा लाइफ मम्मी को बोला कि ऐसा है होने का तेरे को, and then she's like okay I'll do the साड़ी but मैं चप्पल नहीं पहन, मेरे को काम करना है, ठीक है. तो like that I think is the attitude that I want to reflect. But I agree with you, this is a general problem in the scene also. पर ये कॉमेडी में मेरे हिसाब से ज्यादा होता है क्योंकि कॉमेडी में हर 15 सेकंड पे ऑडियंस आपको कोर्स करेक्शन दे रहा है कि ये नहीं ये अच्छा नहीं लगा, नहीं ये अच्छा लगा, हाँ यार ये बहुत अच्छा लगा, ताली बजा देंगे. तो उसमें आपको इतना फीडबैक रेगुलरली टिकटॉक से ज्यादा फीडबैक आपको मिल रहा है, राइट. लाइक फकिंग 15 सेकंड रील इज
so quick. You are getting it almost every second. आप हर एक audience, हर एक laugh, अरे ये laugh किधर गई, ये laugh पहले आ रही थी, नहीं आ रही थी. So that makes us even more prone कि like जो audience को चाहिए वही करेंगे. क्योंकि you know it's like an algorithm ना. TikTok का रील एल्गोरिदम learns faster than YouTube algorithm. रोड में फोक आ गया, तुम चूज कर रहे हो किस तरफ जाना है. इट्स वेरी सिंपल इन दैट सेंस कि या तो तुम वही कर लो जो वो सुनना चाहते हैं, या तुम वो लोग ले आओ जो तुम्हें सुनना चाहते हैं. राइट. एंड ऑनेस्टली लाइक मैं कुछ ऐसा बोल नहीं रहा कि जो उनको नहीं पता है. राइट. मैं बोल रहा हूँ लाइक ये तो हाँ सोचते हैं हम लोग. राइट. तो इसलिए मेरा अभी ऑडियंस सर्कल ही वही बनेगा जो मेरे को रिलेट करते हैं. उनकी वो मेरी लाइफ में वेन डायग्राम बनाऊंगे तो कुछ एक ओवरलैपिंग पॉइंट होगा. राइट. आई हैड सम गाय हु केम टू माय शो. उसको मेरे डैड जोक्स की वजह से ही यूज्ड टू रिमेंबर हिज डैड, एंड के डैड एक्सपायर हो गए एंड 1 month ही डिडंट गो आउट, एंड देन डायरेक्टली केम टू माय शो टू वॉच दैट शो एंड टू रिलीव द मोमेंट्स स्पेंट विद डैड. वैसे वाला सीन. तो उनके लाइफ में कोई एक ऐसा पॉइंट है. हर कोई बंदा मेरी पर्सनैलिटी से एक चीज़ उठाएगा. एक कोई बंदा उठाएगा कि यार ये बंदा ना मेरी कंपनी में काम करता था पहले, लेट्स गो एंड वॉच हिम. दूसरा बंदा उठाएगा यार ये सरदार बंदा है, आई जस्ट वांट टू सपोर्ट हिम क्योंकि मेरे कम्युनिटी का है. आई लाइक दिस इज ही इज That's way रिप्रेजेंटिंग. more in the Sardar community than say in Gujaratis or whatever. सब में है वो. You think एंड that? आई थिंक एवरी कम्युनिटी थिंक्स कि उनमें ज्यादा है. नहीं गुजरात में तो है ही. लाइक मेरे को लगता है जैसे साउथ में कॉमिक्स है, तमिल कॉमिक्स है, मेरे को लगता है यार इनकी सपोर्ट बड़ी यार. दे पुट आउट अ शो एंड दे आर लाइक हाँ भी आ जाएंगे 5,000 लोग. बट आई थिंक एवरी कम्युनिटी थिंक्स दैट वे दूसरों के बारे में कि इनकी सपोर्ट ज्यादा होगी. That makes sense. जबकि मैं तो पंजाबी, मेरे स्टैंड अप में पंजाबी वर्ड कहीं नहीं आता. That's true. क्योंकि मेरे को है मेरी एक्सेंट में ऑलरेडी थोड़ी पंजाबी टच है. दूसरा मेरी मूछें खड़ी थी तो मैंने पगड़ी बांधी हुई है. अगर मैं वहाँ जाकर पंजाबी करूंगा इट मेक्स नो सेंस. Yeah, then they are रिडंडेंट आइडिया है वो. exactly. डू आई नीड टू टेल पीपल बिकॉज़ दे आर ऑलरेडी अज्यूमिंग कि मैं पंजाबी हूँ. हाँ. जो लोग पंजाब के सरदार नहीं भी लोग उनको भी पंजाबी ही अज्यूम कर रहे हैं, तो मुझे तो कर ही रहे होंगे ना. हाँ. Yeah, that makes वो sense. चीज़ है. Do you think there's a, how do I put this? Do you see, like I feel like I was telling you in Delhi also कि मुझे वो वाला फेज में आ रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि अभी जो भी स्टाइलिस्टिकली जो चेंजेस होने थे वो हो गए ऊपरा ऊपरी. मैं स्टाइलिस्टिकली अभी मे बी नेक्स्ट 10 साल ऐसा ही रहेगा. अभी जो चेंजेस आने वाले छोटे छोटे माइनर वाले चेंजेस आने वाले, लाइक एकदम छोटे छोटे, लाइक फॉर्म में जो मिस्टेक्स हैं वो करेक्ट करने अभी कि यहाँ पे मैं ये गलती कर देता हूँ बहुत बार, यहाँ पे ये गलती करता हूँ. डू यू फील लाइक यू आर रीचिंग दैट स्टेज विद योर स्टैंड अप एज वेल वेयर योर स्टाइल इज नाउ कि हाँ लाइक यू फाउंड कि लाइक मैं ऐसा हूँ, मेरा वर्ल्ड व्यू ऐसा है, मैं बात ऐसे करता हूँ. और डू यू फील कि वो चेंज होने वाला है? मेरा स्टाइल ऑफ कंटेंट चेंज होने वाला है फॉर श्योर. मेरा पर्सनैलिटी आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अभी मैं बहुत अपना एट होम फील करता हूँ. और इतना बड़ा एट होम में लगता है मेरे को कि मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ बात. आई वांट टू बी रिलैक्स्ड. आई जस्ट डोंट वांट टू गेट इनटू अ पोजीशन जहाँ पे कोई बंदा ज़्यादा फेमस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, लाइक यार शिट यार मेरे को ज़्यादा व्यूज चाहिए. आई नो दैट इज़ नॉर्मल, दैट इज़ नेचुरल, बट आई होप आई एम एबल टू सर्वाइव दैट कि मैं उसके चक्कर में अपना ना चेंज करूँ. आई जस्ट वांट टू हैव दिस वॉइस जो अभी करंटली है. बट या माई स्टाइल ऑफ राइटिंग विल इम्प्रूव फॉर श्योर बिकॉज बाई डिफॉल्ट आई एम अ कॉमिक हु वांट्स टू गेट अ लाफ इन लाइक 2 seconds, सेट अ पंच लाइन. बट वाइल डूइंग आई रियलाइज कि इससे ज़्यादा मज़ा मेरे को थोड़ी लंबी सेट्स में आता है. नाउ आई रियलाइज कि मेरे को स्टोरी बताने में बहुत मज़ा आने लग गया है. तो आई जस्ट वांट कि मैं कल से बेहतर हूँ. दैट्स इट. एंड देयर इज नो मोटिवेशनल शिट इन दैट थिंग. ऑनेस्टली ये जो बोलते हैं ना यू हैव टू बेटर देन यू, चल मैं तो बेसिक चीज़ है ये, मुझे कल से बेटर होना है. दैट्स इट. आई जस्ट वांट कि मैं जो भी काम आउट करूँ अपना यूट्यूब पे डाले, लोग बोले यार ओके. सो आई वांट पीपल टू वॉच माई स्टैंड अप कि अगर उनको मेरा नहीं पता ना वो देख के बोले यार पहली वीडियो देखी बड़ा सही है. एंड जो लोग मेरे को रेगुलर देखते हैं वो नई वीडियो देखें और ये एग्जैक्टली यही बोले कि बहन जो क्या चीज़ है ये चीज़ क्या है कि बहन जो इसका प्रेडिक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या करेगा. हाँ वो सीन है. जैसे आई नो दैट पीपल जो मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है सब कुछ है, बट यू नो दैट ना कि वो क्या करेंगे. राइट. एंड देयर इज नथिंग गुड और बैड अबाउट इट. नो बट आई मीन उसका ही तो ऑडियंस भी होता है ना. अक्सर की वही ऑडियंस होता है कि मेरे को यही देखना है और मुझे पता है कि ये कंसिस्टेंसी आने वाली है. आई वांट टू बी अब्रप्ट इन टर्म्स ऑफ कि एग्जैक्टली ये रिएक्शन के बहन जो चीज़ क्या है ये, लाइक ये तो नहीं हो सकता कभी बोलेगा या इस तरह से तो नहीं करेगा. लाइक मेरा जो नया वीडियो आई हैव नेवर डन दैट काइंड ऑफ कंटेंट इन दैट काइंड ऑफ लुक एंड फील एवर. दैट्स इट. दैट्स माय टारगेट. सिंगल टेक वीडियो है पूरा, उसमें कोई कट नहीं है. सेकेंडली मैं एक्ट आउट बहुत कम करता हूँ बट बिकॉज इसमें रिक्वायर्ड था और इसमें सारे एक्ट आउट रियल हैं. एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी. It's a true story. Me and couples making out next to me after recognizing me in a theater. जब ये तो दहशत बिट है, ये बहुत फनी बिट है. तो कल उपमन्यु ने मुझसे पूछा कह रहा तू उठ के क्यों नहीं गया.
तो मेरा उस पे वही तो मैंने बोला था, मेरा बॉन्ड बन गया ना। एग्जैक्टली अब मैं इतना कॉन्शियस होता हूँ, कोई मेरे को पहचानता है, मेरे को था कि अगर मैं उठ गया उसको बुरा लगेगा कि यार इसने हमें वैसा कर दिया, ही इज मेकिंग अस कॉन्शियस कि देखो तुम क्या कर रहे हो, मैं उठ के जा रहा हूँ। आई फेल्ट बैड एज अ ह्यूमन बीइंग कि मैं उठ के चला गया ना, तो मैं बोला चल देख लेते हैं क्या, तो कोई बात नहीं, तो देख ले। वो तो लगे शेर आया, शेर करी, हाँ आ गया how do you feel like because when you started you didn't have a lot of friends in the scene जो वीडियो शेयर वेयर कर रहे थे, none of the famous people shared your videos, मेरे साथ भी वही सीन था। I had to deal on some level, मेरे दिल में तो था, मैं शायद बाहर दिखाया नहीं बहुत, बट मेरे दिल में थोड़ा बिटरनेस था कि बहनचोद ये लोग कैसे लोग हैं, and why don't I get to be part of that club, why do I have to fight my way? I still have it. I'm a bitter guy, dude. Looks sweet on screen, but very bitter guy. मैं लोगों को इतनी बद्दुआएं देता हूँ, लानते डालता हूँ लोगों को, मैं शराब देता हूँ लोगों को, शराब उठ के सुबह सुबह शराब देता हूँ। छोटा वुडू ब्रॉल बना रहा था, वुडू वगैरह पेन मार, कील मार रहा मैं। Bitterness is normal, dude. I think everything that you're experiencing is natural. yeah वही ना, जो तुम सोच रहे हो वो एग्जिस्ट करता है। अगर तुम बोलोगे एक वर्ड होता है जेलसी, मगर मुझ में नहीं है, फिर तुम इंसान थोड़ी हो। जेलसी तो होनी जरूरी है ना, बट इज दैट तुम किसी को साबोटाज ना करना शुरू कर दो। ये हो गया कि मेरे घर पे आ गया ना, दारू में कुछ मिला दूंगा मैं, जो कल को आवाज चली जाएगी इसकी। तुम ये मत करो, जस्ट फील जेलस। देख रहा, मैंने ये भी सोचा हुआ है कि कोई तो सोच रहा होगा ना ये चीज कि ये कॉमेडी ज्यादा वायरल हो गया है। of all the fucking दारू में जहर मिला दूं, हाँ कुछ ऐसा मिला दो, बट पकड़े नहीं जाना, बर्फ हाँ बर्फ में डाल दो और पी के आवाज चली जाए, आवाज ऐसी ओ मैं क्या कर रहे हो, ऐसी हो जाए आवाज। तो सोचा ही होगा ना, तो ऐसा नहीं कि जो अगर मैंने सोचा ना ये किसी ने किया होगा, आई एम प्रीटी श्योर ये किसी ना किसी ने अपने करियर में किया होगा कि मैं इसमें ऐसा कर देता हूँ ताकि इसका पक हो जाए। क्या ही होगा यार, तेरे को लगता है यार जेलसी बहुत बड़ी चीज है यार। आईना मूवी नहीं देखी तूने? उस एक बंदे को एक बंदा पसंद होता है, उसकी बहन शादी कर लेती है, कह रही मेरे को भी यही पति चाहिए। तो यही तो है लाइफ, और क्या है। Everybody is looking at someone else's पति and say मेरे को ये चाहिए। I felt a shift in the sense कि पहले बहुत सारे लोग, मैं भी कुछ खास इंसान था नहीं, तो तो I don't mind. So you know I didn't have the most number of friends starting out, and then I grew up because मैं तो 18 साल की उम्र से कर रहा था, तो मैं तो इंसान ही नहीं था। फिर 25 साल 24 साल के आसपास यू बिकम थोड़ा ऐसा मैच्योरिटी आता है थोड़ा। तो इतने सालों फिर अच्छा क्यों नहीं हुआ तू? यार वही पता नहीं यार। I don't mean it, but ये लाइन पड़ी है सामने, ये लाइन पड़ी, कोई बोल रहा है मैं 15 साल से स्टैंड अप कर रहा हूँ, फिर तेरा लाभ क्यों नहीं आता? अब यार तुम समझ रहे हो, अब तुम किसी कमेडियन को बोल दो, कमेडियन बोलेगा यार कैसा आदमी यार, तो तुम क्या तो दुनिया को ऑफेंस मत लो, खुद ही गुस्सा करके बैठ गए, क्या होगा यार? ये सब लाइन पड़ी है सामने। But that's one thing I like about comics, because even if they are saying the truth, at least they are saying it in a way कि मैं हंस रहा हूँ। हाँ, जो रोज करते हैं कमेडियंस आपस में, वो सच्ची बोल रहे होते हैं। उसमें कोई जोक नहीं कर रहा, जो कोई बोलता है कि तेरी ऑडियंस इतनी चूतिया है, वो वाकई चूतिया लोग ही हैं। समझ रहे हो? तेरे 15 साल के बच्चे तेरे को देखते हैं, वो 15 साल के बच्चे ही हैं, बट जस्ट बिकॉज दे आर सेइंग इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन इन एन ऑडियंस, तो लगता है वाह 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 वाह, सो स्पोर्टिंग। अंदर तो सोच रहा है यार क्या आदमी सच बोल रहा है मेरे को यार। मैं कब से दुनिया को फुद्दू बना रहा हूँ, दिखा के अपना कंटेंट, आओ मेरे इस पे, आओ मेरे स्ट्रीम पे, आओ मेरा ये करो, मेरा वो करो, मेरा ब्रांड देख लो। तो वो सीन तो है। You don't do a lot of that stuff, no? मिलता ही नहीं है। Same bro. कोई ब्रांड आता है, अब इस दुनिया में तो बेवकूफ है ना, मेरे को भाई शेविंग कंपनी आई मेरे पास। मैं यार तुम थोड़े फुद्दू हो गया, शेविंग कंपनी आई तो कह रहे कि हमारा नया ट्रिमर आया, तो मैं क्या करूं क्या करूं, कह रहे बाकी लोग कर रहे हैं उसका, मैं फिर मेरे को देखो एक बार, मेरे को देखो। कह रहे फिर एक काम करो, तो उसने, अब मैं मैनेजर क्या बोलूँ, इनको बोलो कि हाँ वो कर लेते, मगर वो ना सरदार है, मतलब हाउ यू, मेरे को बोला, मैं कह रहे काम करो आप ना यूज मत करो, आप सामने रख के उस पर जोक्स कर दो। मैं कह यू रियलाइज हाउ स्टूपिड दैट इज, इट्स जस्ट दैट मी सेइंग कि ब्रा बहुत कंफर्टेबल है ये। ओके राइट, मतलब मैं एक्सपीरियंस नहीं मेरा उस पर, आई डोंट नो व्हाट दिस थिंग डज, मतलब आई नो व्हाट इट डज, बट मेरे को पता नहीं कि क्या फील होगा, क्या सीन है, तो मैं कैसे बोल दूं? हाउ कैन आई से, कोई जो चीज मेरे ऊपर यूज नहीं की हुई कभी। कह रही this is like I was talking to Ganguly. अभी बाल क्या किया ना Ganguly ने किया ना, तो एक्चुअली वो कितना बेसिक ब्रीफ है कि जिनके बाल सफेद हैं उनको बोलेंगे सर पैसे ले लो, बट कुछ करो इनका यार। मेरे को वो भी नहीं आ सकता ना। But you know what? I was telling Ganguly, you should be proud कि तूने लाइफ में कभी बाल नहीं कलर करवाया. But the first time you did, you got paid for it.
तो do you think that there are stuff like that you would do if there was, or do you feel like ऐसा moral level also, like पुनीत तो बोलता है मैं moral level पे मेरे को कुछ promote नहीं करना है, ऐसा कर लो which are harmless, कि जो मैं नहीं करूँगा कोई और कर लेगा, ठीक है कर लो, वैसे वाला इट्स हार्मलेस एंड दैट सूट माई पर्सनैलिटी, वैसा मैं कर लूँगा. अब मेरे को जैसे एक वो कोई बाम है और जिससे जोड़ों का दर्द ठीक होता है, मैं चलो भाई. फिर कोई ऐसा कॉन्डोम एड्स करो, नहीं आई वोंट डू. अब मेरे को मतलब ये नहीं कह रहा यूज मत करो, करो भाई करो, बट मेरे को नहीं भेजना, हो मर्जी मेरी. हाँ, उसमें क्या है. कोई बोलेंगे ऐसा कि ऐसा ड्रिंक्स अल्कोहल नहीं बेचना मेरे को. हाँ, सो मेरा अल्कोहल, सिगरेट्स, गैम्बलिंग. सिगरेट कॉर्पोरेट शो, सिगरेट कंपनी मतलब कोई कंपनी जो बहुत को बनाती है सिगरेट भी बनाती है. हाँ. रिजल्ट आपके फ्रेम में कॉर्पोरेट शो में सिगरेट आनी चाहिए बस. मतलब तुम्हें रियलाइज हो रहा है तुम कितनी बेवकूफ बात कर रहे हो. हाँ. लाइक इफ आई डोंट स्मोक एंड मैं कभी सिगरेट होल्ड भी नहीं करता, व्हाई वुड आई हैव जस्ट बिकॉज़ यू आर पेइंग मी अ लाख. या नो कोई बात नहीं और कर लेंगे. या दैट्स इंपॉर्टेंट. नो, आई थिंक इट्स अ स्लिपरी स्लोप. शुरू में ना आप एक दो चीज के लिए हाँ करते हो एंड देन आपको लगता है कि अगर जरूरत है तो अपने औकात में रखो ना. हाँ. तो फिर तुम्हें प्रेशर नहीं आता. दैट्स व्हाई आई नेवर वांट टू मूव टू बॉम्बे, क्योंकि वहाँ करोड़ का घर है, यहाँ पे 4 करोड़ का घर है. तो अगर मैं 4 का ले लूंगा तो फिर लोन भी उतने उठाने पड़ेंगे. अगर लोन उतने उठा लिए हैं तो फिर मैं नंगे नाच करूंगा ज्यादा कि भाई बिरयानी पहनो, मेरे कच्चे पहनो, मेरा ये भी ले लो, मेरा वो भी ले लो. मेरा कंटेंट भी मेरे को हर 2 महीने में डालना यूट्यूब पे, बिकॉज यूट्यूब पैसा देगा मेरे को. फिर 2 महीने में कंटेंट बनाओगे तो वो घटिया भी निकलेगा. समझ रहे हो, वो सब चीजें हैं, वो सब एक लूप है. तो इसलिए दिल्ली में रहो आराम से, खुली जगह, ठंडा मौसम. दिस आई एग्री विद यू. इफ आई एवर गेट, अगर मुझे ऐसा कुछ मोमेंट आया ना लाइफ में जहाँ पे मेरे को 10, 15, 20 लाख रुपया मिल गया, तो मैं फर्स्ट थिंग आई विल डू इज गो टू स्टे इन दिल्ली फॉर 3 months. एटलीस्ट स्टैंड अप सुधर के आएगा. Because that's because everybody there cares. Then you don't need to push in that sense कि अब मैं ये भी कर लूँ. Then you're like हाँ मेरे पास खाना पीने के पैसे हैं, मैं अगले इतनी देर तक सर्वाइव कर सकता हूँ बिना कुछ किए हुए भी. तो let's do live shows only, क्योंकि live shows तो फन है. हाँ, फनी लाइव शोज है. Exactly. That was the whole idea, right? That was the whole idea. कि जो मैं तो सोच रहा था हर साल एक स्टैंड वीडियो डालूंगा and that's it. But then I realized नहीं, it's possible नहीं है ये वाला, क्योंकि लोग चाहते हैं तो उनके मुंह पे घुसते रहो हमेशा. ये लो, देखो मेरी रील देख लो, मेरा कंटेंट देख लो. हमारे कंटेंट क्रिएटर से घटिया होते जा रहे हैं बीच में. That everybody who wanted to do something else in their life, they are doing reels right now, and they are doing reels not of the content they wanted to do, but they are doing reels of 10. What is selling? Yeah. What is selling? जो beat चल रही, beat motivational speakers, beat अपना ये fitness enthusiasts, beat comedians, beat any other profession, beat singers, वो भी सब अभी गुड लुक्स पे स्लो मोशन पे चलते हुए दिख रहे हैं. अभी तुम्हारा काम था ना कि गाने गाना चाहते थे, तुम म्यूजिक बनाना चाहते थे, बट तुम वही कर रहे हो. I was talking about this to somebody recently. मेरा theory ये है कि एक अपने है ना the biggest difference is ना, somebody asked me कि why do you think content creator का इतना सारा चल रहा है अभी. मेरे को क्या लग रहा है कि it's because brands realize that content creators are cheaper than artists, and content creators will do anything when an artist will say ये नहीं करना है, वो नहीं कर रहा है. And secondly, lastly, content creators can have more reach in terms of because they are putting out content regularly. Exactly. And an artist is actually making art जिसमें time लग रहा है और उसका chances of hitting is less because art में कैसा है, आप नहीं चुनते हो कि आपको क्या पसंद है. जो if it's like a song, right? Like that song stuck with you because not because you chose it, that song chose you. दिमाग में रह गया, अभी वो तुम्हारा पार्ट हो गया, तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए रहेगा. Content एज अ कॉन्सेप्ट ही ऐसे डिजाइन किया है कि तुम्हारा बस अटेंशन रखना है, तुम्हें कुछ भरना नहीं अंदर से. यू जस्ट वांट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर फीलिंग एम्प्टी. हाउ डू वी कम्पीट विद देम? मत करो कम्पीट, और क्या, जस्ट डू योर शिट. राइट, मेन टारगेट वही है, अपना खाना पीना. बेसिकली काम बंदा क्यों करता है, बेसिक रीजन क्या है काम करने का? रोटी पानी. वाह, दैट्स व्हाट एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क यू. व्हाट इज योर किक? लाइक स्टैंड अप में किक? मजा. Everything I do, मजा. Yeah? मजा. Do you feel like that will be sustainable all throughout life? रोटी पानी मिल रहा है तभी तो मजा आ रहा है. Obviously, but money is not the motivational thing behind this thing. ओ ये शो और वो शो में से इस शो पे 10,000 ज़्यादा बन रहे हैं तो ये कर लेते हैं. नहीं, अगर वो कॉमेडी क्लब बेटर है तो वहाँ करेंगे. मोटिवेशन वो नहीं है, मोटिवेशन मजा ही है. मोटिवेशन है, मजा ही रहेगी. बाकी डिपेंड करता है, हो सकता है होने को मैं कल ही हरामी हो जाऊँ. You never know. I know. तो नहीं उसका. Maybe 6 years. You never know कौन बंदा कब चेंज हो जाएगा. How do you know that whatever I'm saying is genuine? How do you know that? No, but that's the thing. No, it's not so much about genuine. That's where accountability generally tends to. stand up देख के मेरे को कुछ पहचानते हो. Then when I say these things, they're like, हाँ ये सेम बंदा है. Yeah. That's you're just leaving it on them. That's what. Do you feel that what I'm saying is real? Yeah. That's it. हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ. आजकल वो सीन है ना कि हम्बल होना जरूरी नहीं, हम्बल दिखाना जरूरी है अपने आप को.
That's fucking true. सब लोग उसी मतलब एक टोन पे आ जाते हैं ना कि हाँ जी थैंक यू सो जस्ट थैंक यू लाइक मतलब थैंक यू ऐसे बोलते थैंक यू Yeah. जस्ट से थैंक यू यू मीन थैंक यू दैट्स इट Yeah, that's true. The last thing I wanted to talk to you about was something you were talking to me in Delhi, which was about. No, I think it was, or was it in Punit's podcast? The thing about how you don't like it when your fans fight with people in the comment section. हाँ I don't like when people feel कि किसी ने मुझे कुछ बोल दिया then they should fight with them because you are ruining your own mental space. Yeah, right. But do you feel like that's a culture? Like किसी को प्रोत्साहन देना कि तुम जहाँ गांड मारो उनका versus किसी को प्रोत्साहन देना कि hey, don't be this person, Don't be be the nice. person, don't be the mob. The people you impact on a like that follow you on a regular basis, you are setting a culture for them, right? Like तुम एक values है जो उनपे मैं कुछ नहीं कर रहा honestly. नहीं but your I mean you saying it matters the most to that person. मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि मतलब क्यों कर रहे हो यार मतलब तुम्हें टेंशन होगी क्योंकि कमेंट में लड़ने का वो है कि तुम 15 मिनट में चेक करोगे अगले बंदे को काम आएगा तुम तो रिफ्रेश कर रहे हो आया नहीं रहा उसकी गाली नहीं आ रही उसकी गाली नहीं आ रही उसकी गाली नहीं आ रही फिर उसकी गाली आई तुम अब क्या बोलो फिर बोला फिर उसको काम आ गया 2 घंटे मीटिंग में चला गया अपनी तुम रिफ्रेश करो चूते उधर आके भाई गाली नहीं आ रही ये कोई लड़ाई थोड़ी है तमीज से करो लड़ाई फिर अगर मुक्का मुक्की होना तो हो जाओ मुक्का मुक्की हो जाओ फिर और क्या खत्म करो बात. It's like Sachin though, you know, like Sachin का मजाक उड़ाते हैं फिर लोग भड़क जाते हैं. Sachin never knows or cares or talks about it. हाँ. But you actually go out of your way to tell people. है ना? यार मेरा अगेन वही चीज़ है जो सोच लिया वो बोल देता हूँ. That's it. As simple as that. मैं सोच के नहीं आता कि आज दुनिया में क्या ज्ञान बांटा जाएगा. जो मन किया बोल दिया. मुझे लगता है कॉमेडी से लोग बदल सकता है. I think so. I think so. People have come to my shows after watching my Jussie Doesn't Like It series. Right. Saying that after we watched that series, we realized that you are not just a comedian. You are a good person. ऐसा उनको लगा. I don't know whether that's true or maybe it's the fake image that I'm creating. But I think fake image आपको 4 साल में पता लग जाएगा अगर fake हुई ना. इतना नाटक कुछ लोग कर लेते हैं. Time is the best. 2-3 लोग हैं जो करते हैं नाटक ऐसा वाला. But yeah. पता लग जाएगा लोगों को यार. यार ऑडियंस बहुत प्लीज कैमरा के बारे में ऐसा मत बोलिए. किसके बारे में? किसके बारे में? कैमरा बोल रहा. कैमरा अरे कैमरा मैं कल डाली फोटो. So I went to meet my friend Gar Malik, very good friend. And Kamra also came there for lunch. क्योंकि कैमरा मतलब पहले से जानता है. मतलब 4 साल पहले हमने परफॉर्म किया साथ में. तो वो भी आया तो उसने मतलब गर्व लेके आया था मेरे लिए केक लेके आया था 1 मिलियन सब्स वाला. तो हमने काटा मैंने सोचा था कैमरा साथ कभी केक काटूंगा समझ रहा है. कैमरा इज नॉट दैट गाइस तुम केक काटते हो. केक उसके साथ आसपास भी नहीं आता कहीं पे. कैमरा के साथ लाइक यू हैव दैट इमेज नो. ओके. तुम्हें लोगों को लग जाए ये रोज प्लान कर रहा होगा आज क्या करना है. समझ रहे हो वो ऐसा सीन है ना. तो उसने डाल दिया फोटो. उसने बोला जसवीर तेरे से फोटो डालते हैं यार. मैं ठीक है. तो उसने फोटो डाल दिया तो मैंने वही फोटो रीशेयर कर दिया अपने इंस्टाग्राम पे. एंड उसके नीचे गालियां people just fighting among themselves. I don't even want to read that. मैंने कल से कमेंट ही चेक नहीं किया उसमें. ठीक है. Yeah, don't even fucking bother. Yeah. क्यों अपना मेंटल स्पेस क्यों खराब करूं मैं जब मेरे को पता है कि मेरे को इस स्टोरी के बाद 24 घंटे गालियां आनी है तो 24 घंटे मत देखो डीएम. रिसेंटली कुछ हुआ था मैंने किसी से पूछा मैं क्या करूं. क्या डीएम मत देख बस 2 दिन नहीं देखा लाइव. सही है. दिस इज द एडवाइस आई गिव टू मोस्ट पीपल कि अगर बहुत सारा हेट एक दिन में आया ना तो रिस्पॉन्ड करना तो छोड़ ही दो. क्योंकि वो लोग भी कंटेंट क्रिएटर ही है ना. वो लोग भी गाली देते मेरे को. कल किसी बंदे ने इतनी गंदी गाली दी ना मेरा मन करता है मैं उसको चांटा मार दूंगा जहाँ मिल गया मेरे को. मैं मार दूंगा चांटा. जबकि मैंने लास्ट टाइम हाथ किसी पे 11वीं क्लास में उठाया. उसके बाद मैं लड़ा भी नहीं किसी से. आई हैव नेवर हैड लाइक द फाइट जहाँ मैं किसी को पकड़ भी लिया हो. बट मतलब वो बदतमीजी है. वो बदतमीजी जो बाप के सामने लेके जाऊंगा माँ के सामने लेके कि क्या ये पैदा किया तुमने क्या. मैं इसको क्या पढ़ा रहे हो तुम. वो उस तरह का वो मैसेज भेजते हैं मेरे को लोग. बट देन आई एम लाइक ओके नेक्स्ट मैसेज ग्रेट शो थैंक यू. I always say this कि जो इंटरनेट पे लव आता है और हेट आता है ना हमेशा आउट ऑफ प्रोपोर्शन ही होता है. तो दोनों को सीरियसली लेके फायदा नहीं है. Do you feel like that with the positive comments as well? Like I तो shut out everything. Like I'll reply and say thank you, but to me it doesn't matter because मैं अगर वो उस एक बाजू का ले रहे हो तो फिर दूसरे बाजू का भी लेने लगोगे और वो लेने का ही नहीं है. जो सामने ऑडियंस है वही मेरे लिए एक फैक्टर है. मेरे को अगर कोई अच्छा मैसेज डिटेल में लिखता है ना तो मेरे को अच्छा लगता है. हाँ. अगर तुम एफर्ट लगा रहे हो ना. हाँ फीडबैक अच्छे से कंस्ट्रक्टिवली. हाँ तो मेरे को अच्छा लगता है. कुछ लिख दो. मेरे को वो जैसे कोई लोग स्टोरीज पोस्ट करते हैं ना सिर्फ टैग कर देते हैं क्या. हाँ मतलब व्हाट यू वांट टू से दैट आपने मुझे देखा बट देन एंड या कुछ तो हो ना. लिखो ग्रेट शो ओके रीशेयर इट बट जस्ट हैंडल क्या करूं. या कुछ लिखो तो सही. दैट्स द पॉइंट.
बट यू डू टेक द पॉजिटिव्स. ऐसा अच्छा तो लगता है आई पढ़ टेक के. द पॉजिटिव. मैं लाइफ का फंडा ही है, जहाँ तारीफ आ रही ले लो. दोनों हाथों से ले लो. मैं तारीफ का भूखा हूँ. हाँ. लिटरली आई क्रेव एप्रिसिएशन. So that's your kick for stand up. दैट्स माय किक फॉर लाइफ. आई विल डू गुड सो दैट कल को लोग बोले यार बंदा ठीक है. दैट्स इट. So that is important. Validation does matter. नॉट वैलिडेशन बट समवन जस्ट फीलिंग गुड अबाउट के इस बंदा मतलब बिना किसी यू नो एक्सपेक्टेशन के कभी कुछ कर देगा हमारे लिए. मतलब इन रिलेशनशिप आई हैव एक्सपेक्टेशंस बट अदरवाइज आई ट्राई टू कंट्रोल it as much as possible, but I'll go out of my way to do stuff. Yeah, because I'll you go out know of my that way. it makes people feel good. Yeah, it's just the small things. It's always the small things. And with stand up, it's like drugs because it's like 500 people feeling good at the same time. हाँ, but वो तो मेरा काम है ना. लाइफ थोड़ी है वो. समझ रहा, वो तो मैं करता हूँ. बट पर्सन तो मैं बाहर हूँ ना. वो चीज रियल लाइफ में. I like that separation. मेरा इतना separation नहीं है दोनों के बीच में. मेरा आदमी सेम ही है दोनों जगह. मैं जैसे वहां हाँ, बट तू कंपार्टमेंटलाइज अच्छे से करता है. मैंने नोटिस किया है. Like for you, your हाँ मैं भी करता हूँ पर मेरे को ऐसे वर्ड नहीं पता. तो मेरे को पता हाँ, मतलब तू जॉब है तेरे लिए. नहीं जॉब मैं तो उसको जॉब इन द सेंस दैट यू नो कि ये वर्क है और ये मैं हूँ और यही बंदा वर्क करता है. हाँ पर मैं हूँ और वर्क है. हाँ, that I am still struggling with a little bit. I but don't not the term work, something else. I don't know what the term is, but it's not like a job or a work. Paid hobby. Not really. It's just stand up. That's it. I don't know. I think that's the मेरे को perfect पिछले वाला वर्ड नहीं याद आ रहा अभी. तो जो बोल रहा था क्या होता है वो? compart- काउंसलिंग होती है ना उसे कॉलेज में. उससे पहले काउंसलिंग वर्ड नहीं याद आ रहा मेरे को. तो सॉरी. क्या बेवकूफ आदमी है यार. अचानक से याद आया मेरे को. All right, I think that's the perfect callback to end this on. Thank you so much for being on, Thank Jesse. you, bro. It's been an अब absolute लोगों को लग pleasure. रहा होगा ना ये हम फेक हैं, हमने दोबारा से याद किया. नहीं लग रहा होगा क्योंकि ये प्रोडक्शन ही इतना मस्त है. बेसिक. और मैं नेचुरल तो हूँ, तेरे को पता ही है. हाँ और मैं तो हूँ ही. चलो whatever. Thank you for watching. You can follow Jesse on the interwebs as the links देखो सब लिखा हुआ है. हाँ? जो मन करे यार. इतना मेहनत कर लो. जैसी का स्टैंड अप देखो. नया वीडियो अब तक आ गया होगा. But I hope you've seen it. If you've not, go check it out. Couple make out कर रहा है. Sex से ज़्यादा और क्या चाहिए. And follow this podcast Akash Mehta and Friends. There is a membership button underneath or a patronage link in the description. Click that if you want to help us contribute this. Thank you.